Like Ravi said, I'm busy now. Okay, this is the first sentence which I'm gonna to tell you. When we said direct to indirect, okay, direct to indirect, Ravi said, I am busy now. Okay, Ravi said, I am busy now. This is a direct word. If we convert in indirect word, how we will conduct? Like Ravi will come and the same like subject. Ravi said, what Ravi said, when we remove this inverted commas, when we remove this inverted commas, what will happen? That will come. What will come? That. That. Now this pronoun will change. I की जगह क्या आएगा? He. What will come? He. This pronoun has changed. Now am की जगह क्या आएगा? What will come? Was, busy, and now की जगह what word adverb come this then. Okay, so Ravi said that he was busy then. Okay, I have changed this inverted comma in that is called conjunction. Okay, this sentence in a present simple, but now this sentence it comes in past simple. Okay, I have converted that message to the other person in that manner. Okay, Ravi said, I'm busy now. Ravi said that he was busy now. I की जगह he, am की जगह was, यानी pronoun change. And what come change? Like a verb change. यहाँ पे adverb change. This is direct to indirect. Okay, let's see the rules of direct and indirect. Okay, there are the few rules of that. Sentences, how to change it. I have shown how to change direct to indirect sentence. Okay, rules for changing like direct into indirect. The first rule, like when the reporting or principal verbs in the past, all present tense of the direct are changed into corresponding past tenses. Okay, मतलब जब हम रिपोर्ट मतलब जब उसको रिपोर्टेड स्पीच, आई हैव टोल्ड यू व्हेन वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, सम few of the like a past, like a verb is in the past. Okay, जब वो कैसे करते हैं ना, प्रेजेंट से उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं. ओके, सो अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट. ओके, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन समवन इज टेलिंग टू मी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आई एम कन्वर्टिंग दैट मैसेज इन सिंपल पास्ट टेंस. गॉट इट मोर पॉइंट? किसी ने मुझे बोला, मैंने उसको पास किया. रवि सेड आई एम फीलिंग इल. ओके, रवि सेड आई एम फीलिंग इल. तो मैंने ये मैसेज डायरेक्टली कन्वर्ट ऐसे कैसे नहीं बोला. मैंने क्या किया? रवि सेड दैट he was feeling ill. Okay, so I have changed it. I have changed it. Okay, now let's see how it can change. Simple present becomes a simple past. For example, he said I am unwell. How we change it? उसने बोला कि he said I am unwell. अब इसको indirect में कैसे change करेंगे बताओ. Okay, he said he will come same then a sad. Okay, अगर sad नहीं हो तो हमें भी लगाना है. Okay, if there is no sad is given in the sentence, we should put it like, okay, when we remove this inverted comma, what we use? Conjunction that. Okay, he said that. I की जगह क्या आएगा? He. The pronouns has changed. He. am की जगह क्या आएगा? Was unwell. Okay, तो दिस इज इनडायरेक्ट वर्ड, यानी कि रवि ने मुझे बोला और मैंने इस इनडायरेक्ट वर्ड को प्रेजेंट सिंपल से चेंज करके पास्ट सिंपल में बताया है. गॉट इट मोर पॉइंट? अब कोई प्रॉब्लम आएगी आपको रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, इसमें ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्या करना है क्या नहीं करना. तो दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट रूल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ना बहुत सिंपल है और आपको जरूर समझ में आएगा अगर आप प्रॉपरली इसे देखेंगे तो. ओके, सो ही सेड दैट ही वाज अनवेल. ओके, अगर आप सोच रहे हो ना कि हिंदी में बताओ फिर इंग्लिश में बताओ, तो आप कभी जिंदगी में अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकते. मैं बचपन से वही कर रही थी, फिर मैंने ये सब हिंदी इंग्लिश का छोड़ा सिस्टम. पहले मेरे पास बुक्स थी हिंदी से इंग्लिश में कैसे सीखें. आई स्टॉप दिस नाउ. अगर आप इफ यू वांट स्पीक इंग्लिश, you really should watch English movies.
Okay, that or also you should read that English newspaper or whatever the things. Read English books also. Do not like okay Hindi. No, slowly by step one steps to another step you will must sure you will learn it. Okay, I must sure. Got it my point? This is just a language. It's not a big deal. We can't do it. We can. Correct. अंडरस्टैंड सो कभी भी ये मत सोचो कि हिंदी से बनाऊंगा सेंटेंस इंग्लिश में, उसमें हमेशा स्टक रह जाओगे और वो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश को सीखो. एक बार ग्रामेटिकल आपको आ गया कि कहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज करना है, कहाँ पास्ट टेंस यूज करना है, आई एम मस्ट श्योर आप बिल्कुल भी नहीं रुकोगे. ओके, डू नॉट अफ्रेड अबाउट टू सी व्हाट. और हमेशा याद रखना कि व्हेन यू आर स्पीकिंग, डू हम जब बोलते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार सामने वाले को बड़ी इंग्लिश आती है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आधा दिमाग तो वहीं पे ही बंद. नहीं, बोलो ना. इफ यू डोंट नो द समवन विल करेक्ट यू. इफ समवन इज करेक्टिंग यू, यू विल इम्प्रूव. ओके, उसने ऐसा बोला था, ये गलत है, तो यू विल इम्प्रूव. ओके ना, हम बोलते हैं ना कि लाइफ में मिस्टेक करके आगे बढ़ते हैं, तो मिस्टेक से सीखते हैं हम, और वो मिस्टेक दोबारा ना करे तो दैट्स गुड ना. ओके, डायरेक्ट. तो यहाँ here I have changed simple present becomes a simple past. Okay, direct. He said I am unwell. He said that he was unwell. यानी कि inverted commas हटा के that लगाया, और that नहीं भी लगाना तो भी चलेगा. He said that he was unwell. But हम लगाते हैं because ये हमारा पुराना रूल है. But अगर आप नए में देखो तो चलता है. Now let's see present continuous becomes a past continuous. Okay. डायरेक्ट में बोलते हैं ही सेड माई मदर, नो सॉरी, माई मास्टर इज राइटिंग लेटर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट टेंस विच इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. अभी जो चल रहा है ना काम, जो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, तो जो एक्शन नाउ आई एम डूइंग दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, मतलब पहले कर रही थी मैं वो काम, दैट इज अ प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल वेन यू वर कॉलिंग मी आई वॉज स्लीपिंग. जब तुम मुझे फोन कर रहे थे तो मैं सो रही थी. ओके, नाउ व्हाट एक्शन आई एम डूइंग. ओके, so this is a direct. He said my master is writing a letter. Now it's indirect. He said, inverted commas remove होंगे, that my master माई की जगह क्या आएगा. मैंने गलती की, आपने बताया मैंने गलती की. ओके, तो व्हाट विल द प्रोनाउन कम. माई की जगह हिज, मास्टर इसकी जगह वॉज राइटिंग लेटर. ओके, ही सेड, कंजक्शन हटाया, दैट my pronoun has changed, his, master is, was writing